ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So, so do you want to should we listen to the Bhishma Stuti or we can just start? What do you think? Let's start. So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, ninth chapter, verse number 39. 39 ही करना था ना प्रभु? हाँ. विजयरथ कुटुम्बात आततत्रुते घृतहरिष्मिनी तच्छ्रये क्षिण्ये भगवती रतिस् भगवती रतिर्स्तुतु स्तुमे मूर्षात् यमिर् यमिः निरीक्षया निरीक्षय तथा गतः स्वरूपम्. At the moment of death, let my ultimate attraction to be Lord Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjun who stood with the whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjun's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. Can someone read the purport? Okay, ओके। Prabhuji. ओके माता जी, आप रीड करो। A pure devotee of the Lord constantly sees the presence of the Lord within himself because of being transcendently related by loving service. Such a pure devotee cannot forget the Lord for a moment. This is called trance. The mystic yogi tries to concentrate upon the super soul by controlling the senses from all other engagement, and thus he ultimately attains samadhi. A devotee more easily attains samadhi or trance by constantly remembering the Lord's personal feature along with his holy name, fame, pastimes, etc. Therefore, the concentration of the mystic yogi and that of the devotee are not on the same level. The concentration of the mystic is mechanical, whereas that of the pure devotee is natural in pure love and spontaneous affection. Bhishma Dev was a pure devotee, and as a military marshal, he constantly remembered the battlefield featured of the Lord as Parthasarathi, the chariot driver of Arjuna. Therefore, the Lord's pastimes as Parthasarathi is also eternal. The pastimes of the Lord, beginning from his birth at the prison house of Kamsa up to the Mosala Leela at the end, all move one after the other in all the universes. Just as the clock hand moves from one point to another. And in such pastimes, his associates like the Pandavas and Bhishma are constant eternal companions. So Bhishma they never forgot the beautiful feature of the Lord as Parthasarathi, which even Arjuna could not see. Arjuna was behind the beautiful Parthasarathi, while Bhishma Dev was just in front of the Lord. As far as the military feature of the Lord is concerned, Bhishma Dev observed this with more relish than Arjun. All the soldiers and persons on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual form like the Lord after their death because, by the causeless mercy of the Lord, they were able to see him face to face on that occasion. माता जी बस यहीं तक रुक जाओ ना. Okay. Hare We'll read this and then we'll explain this and we'll go further, है Krishna. ना? So what's happening is we know the background. Bhishma Dev is on on the arrows and he is about to die. And what he's doing, he's actually praying because Krishna is in front of him. So what's happening is we discussed how powerful was Bhishma. Bhishma was so powerful that he was capable of destroying the whole Pandav and Kaurav army at the same time. This is how powerful he was, you know. So that kind of a power does not come to norm like ordinary people, like, you know. And he
in order for him to attain that, he must have had some extremely amazing mystic powers. He was able to defeat Parshuram, who is incarnation of the Lord. So why was he so powerful? हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था. वन डे व्हेन राजसूय यज्ञ में भीमा, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, ही वॉज अबाउट टू अटैक शिशुपाल. भीष्म देव ने उनको 3 उंगलियों से रोक लिया था और वो हिल भी नहीं पा रहे थे. भीम भीम है ना. सो दिस इज हाउ पावरफुल भीष्मा वाज. सो इमेजिन अ पावरफुल वॉरियर नाउ lying down his deathbed, and he's in front of it is Lord Krishna, and he's trying to tell us, he's doing prayers. लेकिन he's not doing prayers for only for himself and to Krishna. He's doing prayers so that we can learn something from it, है ना. So सबसे पहले तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद, when he starts this, he says, he's talking about, what is actual yoga, like, जो हम लोग अष्टांग योगा सुनते हैं ना, अष्ट अंग योगा. अष्टांग योगा का मतलब होता है there are 8 limbs of it. कोई बता सकता है what are the 8 limbs of yoga? Anybody? प्रभु जी थोड़े बहुत इसमें याद है, यम नियम यम यम नियम, नियम, प्रत्याहार, यम नियम, and then ध्यान. आहार I don't प्रत्याहार, remember the sequence, but okay, that's fine. Yam niyam, आहार यम प्रत्याहार, आहार प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, dharana, समाधि. No, ध्यान, last is it. ध्यान is the ध्यान last and actually. pranayam. हाँ, Pranam, प्राणायाम. samadhi is last is it. Yeah, yeah. ध्यान, धारणा, समाधि. So यम नियम यम नियम, प्रत्याहार. है ना. और प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा एंड समाधि, है ना. नाउ कई लोगों को लगता है समाधि इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑफ योगा. Actually, samadhi is the last stage of Ashtanga yoga, but it's not the goal of yoga. Ashtanga yoga. Ashtanga yoga का actual goal जो है, it is to realize Paramatma in the heart, है ना. But because हम लोगों ने हमेशा से अष्टांग योग के बारे में क्या सुना है, somebody is sitting on a Padmasan, and he is trying to control his life airs. Anybody knows how many life airs we have? 5 शायद ना. हाँ, 5. And do you know the names of them? मुझे नाम नहीं याद है ना, सॉरी. Dhyan, प्रभु प्राण वायु, अपान वायु, अपान वायु, हाँ. प्राण, अपान, व्यान, उदान व्यान. एंड समान, है ना. सो देयर आर 5 वायुस. तो क्या होता है, when you do ashtanga yoga, you're controlling these 5 airs, and these 5 airs are not just inside your body. These airs are the airs that are flowing across your body, outside in your aura as well, है ना. So कुछ ऐसी वायु होती हैं जो हमारे शरीर के बाहर होती हैं, अंदर तो खैर है ही, है ना. देयर आर सम वायु जो बाहर भी होती हैं, तो उसको वो आती हैं अपने ऑरा के अंदर ना. यहाँ पर बट व्हाट शिला प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट हियर इज कि हम लोगों का जो ऑर्डिनरी मीनिंग होता है, हम लोगों को ऑर्डिनरी, हमको जो समझ में आता है समाधि क्या होती है. समाधि इज अ ट्रांस, है ना. अब वो जो ट्रांस जो होता है वो एक्चुअली क्या है, ट्रांस इज एक्चुअली, जब अष्टांग योगी की बात आती है तो ट्रांस वो होता है जहां पर 100% आदमी हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग, एवरी पैंग्स ऑफ ऑल द पैंग्स ऑफ दिस मटेरियल लाइफ इज गॉन, है ना. और आप एकदम बिल्कुल उसमें चले गए हो जहां पर देर इज नथिंग, जिसको कहते हैं कलमश नहीं है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. वो ऐसी हालत हो जाती है जैसे एक बैचलर की होती है ना, वैसे. नो नो, आई एम जस्ट जोकिंग, यू नो ऐसा कुछ नहीं है. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू फील इज, ही इज ट्राइंग टू फील दैट ट्रांस वेयर यू आर एक्चुअली इन ब्लिस, है ना. ब्लिस. हाँ माता जी, क्वेश्चन. प्रभु, पर ये ट्रांस वाला जो स्टेज है, हम गृहस्था कभी अचीव कर ही नहीं सकते फिर. मतलब पॉसिबल ही नहीं है. नहीं, एक्चुअली है पॉसिबल. मैं आपको बताता हूँ. एंड इफ आई टेल यू राइट नाउ ना, आई कैन टेल यू समथिंग एंड यू विल से yes, you have felt it. I'll explain it to you. Actually क्या है कि if you think about it, what happens is in trance, है ना. What is the meaning of trance? Trance वो वाली एक स्टेज होती है where you forget all the sufferings that you're feeling, है ना. अब कोई बोलेगा यार वो तो when you have 2-3 packs of alcohol उसमें भी भूल जाते हैं, है ना.
ना, दैट्स नॉट ट्रांस, दैट इज जस्ट इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस होती है वो। ट्रांस क्या होता है? व्हेन यू गो पास्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू नो, द अदर डे, आई थिंक Puja Mataji is not on the line. The other day I was telling you guys, hey, Krishna is waiting for you. Puja, Krishna is waiting for you, for your service. ऐसे बोल रहा था, and she started crying. That crying, जो आंखों में आंसू आते हैं एक सेकंड के लिए, जो इमोशन आता है, that is trance. Now the problem is, हम लोगों को क्या चाहिए? We want trance to 24/7. लेकिन there has been instances, Ruchita Mataji, I have seen you when you're doing kirtan. So many times your eyes are closed and you're on harmonium, you're singing kirtan, and there is a moment where you don't know where you are, who you are, what are you doing. That state of mind, when you're totally engrossed in the holy name, that stage is actually samadhi. That stage, or at that particular stage, problem क्या होती है? Because we are conditioned souls. So conditioned souls के साथ क्या होता है? Because we have so many contamination, those satgun, rajgun, tamogun will go on top of us and make us forget that trance. That's why those very, very senior acharyas, they can stay in trance for a longer period of time. What we can do is we can stay in trance for a very small amount of time. So Ruchita Mataji, the time when you are feeling that disconnect, I should not say disconnectedness, the time when you're actually feeling who you really are, and you are not associating yourself with your physical body and the relationship related to this physical body. इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि, है ना? तो when you are not feeling that state of mind is called trance, and that state of mind does not stay for long, because we have lot of anarthas in us, and we have lot of karma that we are bearing right now, and there are so many other purificatory things that we have to go through before we can sustain that trance for a longer period of time. So, having said that, Ruchita Mataji, does it make sense? You can. That does make sense. I was just wondering how can we be आपने बता ही दिया जवाब वैसे कि कैसे हम उस पे सस्टेन कर सकते for a longer period of time. That's correct. But yeah. So, yeah, so what we have to do, like, पता है, this is the lifelong practice. So actually क्या है? The purpose of human life is to realize who we are and what is our relationship with God. That is the only purpose. Anything else that we are doing with this life, it's called Shramaha Evahi Kevalam, useless waste of time. That doesn't mean that we should not do anything other than that. That means everything that we should do, we should never forget the goal, ultimate goal. Anything that is not serving that ultimate goal, we should not take it very, very, very seriously. है ना? लेकिन ये चीज हम लोग भक्ति वृक्षा में नहीं बता सकते अभी अपने, है ना? राइट नाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ elevated thing in our bhakti vriksha, because we all are grahasthas, we have our responsibilities and stuff, and anything that is related to this bodily identity, which is, जिसको कहते हैं उपाधि, है ना? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा. सो ये जो उपाधि है हमारी, वी एक्चुअली आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दीज उपाधियां, है ना? एंड अभी नेक्स्ट जो क्लास है भक्ति वृक्षा में, वी गोना टॉक अबाउट हु एम आई, है ना? दैट विल हैव अ वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ पीपल who have not discussed this in detail, who am I, like, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे. सो व्हेन वी, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट हु आई, नॉट थिंकिंग अबाउट माय मटेरियल पैंग्स, दैट इज समाधि, है ना? तो अभी क्या है? A devotee more easily attains samadhi. Now how come devotee? अब क्या होता है? I think lot of you guys, आप लोग सब लोग, you guys do a lot of जो कीर्तन वगैरह करते हो, when you're doing कीर्तन, all of you would have felt that bliss. चलो वो तो छोड़ो. How many times it has happened to you that you're listening to a lecture or listening to a class and you're like, oh my goodness, this is amazing, है ना? Prabhuji, every Bhagavatam class it is like that. So, you know what this is? This particular thing, pata hai why we actually really enjoy it? Because with every Bhagavatam class, with every knowledge, that every nuggets of knowledge we get, हमारा अंधकार का एक पोर्शन गायब होता जाता है
है ना। तभी तो हम लोग पहले स्टार्ट कैसे करते हैं क्लास को, ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। ओम अज्ञान हमारा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू द क्लास। आज सुबह की जो क्लास थी मंदिर की, किसी ने सुनी थी आज की? ओके उसमें ना प्रभु वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रीजन। आप लोग में से कोई को पता है व्हाट इज द मेन रूट कॉज ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स? हमारे सारे रूट कॉज का क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द, Desire, प्रभु जी। हाँ Desire, सॉरी, our desires। डिजायर्स ये है, बट व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट डिजायर्स, लाइक वो कहाँ से आ रही है? संगत, फॉल्स प्रभु जी, आइडेंटिटी प्रभु जी। संगत हमारी फॉल्स आइडेंटिटी, हाँ फॉल्स आइडेंटिटी कहाँ से आ संगत रही है? से भी। प्रभु इग्नोरेंस। यस अज्ञानता, अज्ञानता इज द रूट कॉज। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन में क्लियरली बताते हैं सबसे हर चीज का जो प्रॉब्लम क्या है, अज्ञानता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आर मिजरीज। नाउ द रीजन व्हाई यू एक्चुअली फील रियली अमेजिंग इन सम नगेट्स जो आते हैं भागवतम क्लासेस में या दूसरे लेक्चर्स में, क्योंकि पार्ट ऑफ आर इग्नोरेंस इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, एंड हमारी विजन एकदम से और अच्छी होने लग जाती है टुवर्ड्स लाइफ, एंड दैट इज व्हाई वी फील दैट sense of oh my goodness this is amazing, and that's why we want to listen to more classes, we listen to more, we want to read more scriptures. आप लोगों ने कभी वो देखा है? आई वाज ऑन लिंक्डइन द अदर डे। लिंक्डइन में somebody sent shared some videos of these little kids, 1 साल के 2 साल के बच्चे हैं, उनको क्या चश्मा लगा रहे हैं बिकॉज दे फाउंड आउट कि उनकी आंखें खराब है बच्चे की। एज सुन एज उनके वो रो रहा है, उस चश्मा नहीं लगाने दे रहा है, एज सुन एज दे पुट द ग्लासेस ऑन, वो एकदम हंसने लग जाता है। ओ माय गुडनेस ही इज स्माइलिंग लाइक ओ माय गुडनेस व्हाट हैपेंड, एंड ही इज लाइक वन ऑफ द किड इज एक्चुअली क्राइंग विद हैप्पीनेस कि यार ओ माय गुडनेस इज दिस हाउ वर्ल्ड लुक्स लाइक। मतलब उस 1 साल 2 साल का हो गया है, लेकिन उसने कब सब कुछ धुंधला दिखता है उसको। उसको जैसे ही चश्मा पहनाया, नाउ ही कैन सी क्लियरली एंड ही कांट कंट्रोल हिज इमोशंस। And this is what happens when we are listening to scriptures and we are listening to the real. So what happens is सारे ignorance के हमारे जो जाले हैं वो खत्म हटने लग जाते हैं। We start feeling this bliss of ज्ञान। ज्ञान का जो दीपक है, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल। When someone puts the ज्ञान का काजल on your eyes, you can actually see, you can get rid of that ignorance अंधकार, and you can see the light. And that is why that bliss that you feel is not an ordinary bliss. The reason why that bliss is there, because inside us, हमारी जो कवरिंग के अंदर क्या है, we are सत चित and आनंद, है ना। आनंद is part of us. Now what happens is every time an ignorance chipped off from our life, we are actually going towards that bliss. और आज की क्लास में प्रभु बता रहे थे कि what happens is every time we feel this excitement, this enthusiasm in our bhakti for even for a moment, it is actually causeless mercy of Krishna. Krishna is telling us, you know what, you're on the right path. और इसीलिए इसीलिए it is extremely critical or crucial for us to have at least some association of devotees. Nobody can do निर्जन भजन, है ना। रुचिता माता जी, आपको क्वेश्चन प्रभु जी, अगर एंथुजियाज्म खत्म हो जाए तो मतलब कृष्णा की कृपा नहीं हम पे, इसका ये मतलब है? है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कृष्णा की कृपा है, और क्या हो रहा है कि हम लोग उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो कृपा, अगर हमें वो कृपा दिखाई नहीं दे रही है, दैट डजंट मीन कि कृपा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी ब्लाइंड सारी बंद कर रखी है सारे हम्म। घर की, दैट डजंट मीन कि सूरज नहीं निकला है। सूरज तो है ही, हम लोगों ने अपनी ब्लाइंड बंद कर ली है ना। सो समटाइम्स व्हेन वी कांट सी द हैंड ऑफ गॉड, मर्सी ऑफ गॉड, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वी हैव टेक्निकली पुल्ड अप आवर ब्लाइंड्स, है ना। हमारे घर सारे सारे खिड़की दरवाजे बंद करके ब्लाइंड लगा दी हम लोगों ने, एंड दिस इज नॉट बिकॉज कृष्णा हैज रिड्यूस्ड और उन्होंने अपनी हाथ खींच लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम करा था ना, वी वर डिस्कसिंग। रुचिता माता जी, डिड यू लिसन टू द लास्ट क्लास फ्रॉम भक्ति रक्षा? यस आई डिड। है ना। तो उसमें वी वर डिस्कसिंग कि देर इज नो नथिंग कॉल्ड डार्कनेस, है ना। लैक ऑफ। डार्कनेस, इट इज लैक ऑफ लाइट, है ना। क्योंकि जैसे आई नो समवन, व्हाट इज द यूनिट फॉर द लाइट? हाउ डू वी मेजर इट? ल्यूमेंस, ल्यूमेंस, हाँ ब्राइटनेस, हाउ डू मेजर इट? ल्यूमेंस, है ना। जितना ज्यादा ल्यूमेंस होता है उतना ब्राइट लाइट होती है ना। लेकिन कैन यू मेजर डार्कनेस? नो यू कांट। देर इज नो नो यूनिट फॉर डार्कनेस।
कोई ये नहीं बोल सकता है कि 60 ल्यूमेंस की डार्कनेस है, नहीं, इट्स एक्चुअली 66,000 ल्यूमेंस, वट एवर इट इज एक्चुअली लाइट. सो देर इज नथिंग कॉल्ड डार्कनेस. Darkness is actually absence of light. Similarly, So, cold, there is nothing called cold. Cold is actually what? yes, yes, yes. Absence of heat, है ना? So minus 260 degrees centigrade पे it's called absolute zero, because at that point all the functions, all the movement of molecules and stuff stops, because it's freezing point. The movement होते हैं molecules के बंद हो जाते हैं. That's why it's called absolute zero. उसको हम लोग measure कैसे करते हैं? We don't measure it out of, we say at that moment there is no heat. So what we need to do is, as soon as you put heat in it, it will start heating up. So it's इसी तरीके से mercy is always there, but हम लोगों के साथ क्या है? We have, we ourselves have put these barriers between us and Krishna's mercy. You know, अगर आपको बारिश में गीले नहीं होना है, अगर आपने छतरी लगा रखी है, and if you're going in a car and you're complaining that I cannot get wet, बारिश भी हो रही है, मैं क्यों सूखा सूखा हूँ? What does that mean? That means all we have to do is get out of the car or get rid of the umbrella, and we will be actually drenched with the mercy. So ignorance is the cause of lack of enthusiasm, or there's any other Ignorance, reason? ignorance is cause for everything, actually, all the miseries. Yes, but ignorance, yes, ignorance it is. But ignorance is, what is ignorance? Where is it? Where does it come from? है ना? Ignorance come from our own free will. You know, एक person सुबह उठता है, it's his choice of what he wants to do. Does You he nailed want? it, प्रभु जी, यही प्रॉब्लम है. क्या? सुबह उठना ही तो प्रॉब्लम है प्रभु जी, वही सीरियसनेस नहीं I है. was talking to someone today and I was telling them that it's not, सुबह उठना is not a problem. Problem is रात रात को को सोना. सोना. Hmm. हाँ. So if you focus on the right outcomes, na, everything will fall. If don't focus on getting up early, you focus on getting to bed early. और उसमें क्या होगा? Don't think it's gonna be easy. You have to कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी. You have to move things here and there. You have to do very small, tiny, इसको कहते हैं micro habits change करनी पड़ेगी. But it is quite possible. But don't focus on हमारे ऑफिस में बोलते हैं इसको लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स. लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द थिंग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रिजल्ट्स. लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं रिजल्ट्स. So getting up early in the morning is not, it's actually a lagging indicator. That means it's a result. But what is leading towards getting that result is getting to sleep early. है ना? बहुत टाइम लगेगा उसमें, but if you have a really good, you know, if you have a motivation, then like for example, सुबह उठना is a problem for only when we don't have a motivation. अगर हमें सुबह 3 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो हम लोग रात भर नहीं भी सोएंगे, चलेगा. होता है ना, कई बार उठ जाते हैं हम लोग, फ्लाइट पकड़नी है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ कि इंडिया जाना है या $2,000 की टिकट है, लकी ना. सो इट्स नॉट अबाउट इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं. इट्स बिकॉज कि हमारे पास सुबह उठने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है ना, हमको उस पर विश्वास नहीं है. और उस पर विश्वास करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. डोंट वरी अबाउट दैट रिजल्ट. भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, मेक श्योर यू फोकस ऑन द एक्टिविटी, नॉट द रिजल्ट. So the activity is try and get to sleep early, and trust me, it will happen. And if you have decided that you want to get up early, I mean, not, if you have decided that you want to sleep early, slowly and gradually things will happen around you that you will be able to sleep early. But make sure कि आपके दिमाग में से जो इंटेंसिटी है, जिस इंटेंसिटी से आप उसको मांग रहे हो, वो कभी कभी कम ना हो, बस. Does it make sense? That motivation, I was just thinking how to bring that in my life. मोटिवेशन माता जी देखो, देर आर एवरीथिंग का एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर है ना. देर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू गेट मसल्स, आई नीड टू गो टू द जिम. You know, I want to build muscle. If I want to build stamina, I need to do more repetition, less and less weight. If I want to build, if I want to grow my muscles, I have to do less repetition, more weight. है ना? So इसी तरीके से when you want to build that stamina of motivation, then you have to, all you have to do is simple. There are Sharanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pad Sevanam, Anchana Mandanam, Dasyam Sakyam, Atmanivedam. There are 9 limbs. कोई सा भी एक पकड़ लो and you will be able to get there. So the idea is, if you focus on chanting, है ना, or if you focus on your aspect of one every single day reading Srimad Bhagavatam for 5 to 7 minutes,
कीप द श्रीमद् भागवतम ऑन योर नाइट स्टैंड पे रखो श्रीमद् भागवतम को। नहीं पढ़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, ये सोच के करो कि एवरी नाइट आई एम गोना टच श्रीमद् भागवतम एवरी नाइट। रख दो पास में, डोंट वरी बट सुची मुची को ज्यादा टेंशन मत लो। लीव द श्रीमद् भागवतम नेक्स्ट टू योर बेड स्टैंड, है ना, नाइट स्टैंड। And then one day just open it up and close it, then open it up, read one line and close it, then open it up, read two line and close it। ऐसे थोड़े दिनों में आके तो क्या होगा, धीरे 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 when you are actually doing micro steps toward Krishna, and then you're okay with whatever happens, but you want to be motivated, then this process will bring motivation। Actually क्या है, आपको पता है कि देर इज ए वेरी बिग पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कैसे, पैराडॉक्स किसको कहते हैं, वी डोंट नो कि ओरिजिन क्या है। जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, है ना, वी डोंट नो। ठीक है, सिमिलरली कई बार हमें लगता है कि आई नीड मोटिवेशन टू डू समथिंग, but nowadays there is the lot of psychologists, they are actually calling it opposite। They're saying in order for you to feel motivated, don't wait for you to be motivated to do something, you do something out of duty and out of what do they call it, ritual, out of a ritual। So what will happen is every single day if you do something every single day, then that will increase your propensity to start getting used to it। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब लोग बच्चों की शादी कर दी जाती थी अराउंड 4-5 साल की उम्र में, ठीक है। अब मेरे दादाजी हम लोगों को बताते थे ये कि क्या होता था, मेरे दादाजी की शादी मेरी दादी से हो गई थी जब मेरे दादाजी 5 साल के थे, दादी मेरी 4 साल की थी, नहीं 7 साल के थे और 4 साल की दादी थी। तो जब से वो 7 साल के थे, 7 साल से लगा के 21 साल तक जब तक हुए, मतलब 14 ईयर्स तक, 14 ईयर्स तक वो क्या करते थे, 14 लड़की का गौना नहीं हुआ जाता, दैट मीन्स लड़की अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी शादी के बाद भी। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, व्हेन गर्ल इज ऑफ एज, देन दे विल गो एंड ब्रिंग द ब्राइड होम, है ना। तो वो 14 साल तक क्या करा मेरी दादी ने, मेरी दादी तो मेरे दादाजी का नाम भी नहीं जानती थी और उन्होंने तो ढंग से उनसे बात भी नहीं करी थी। 4 साल से लगा के 12 साल तक उन्होंने ढंग से बात भी नहीं करी थी मेरी दादी से। लेकिन वो क्या करते थे, हर त्योहार पे, इंडिया में कितने 10-12-15 त्योहार तो आते हैं साल में, हर त्योहार पे the whole family of husband will come to bride's house and they will serve them, feed them। और ऐसा कर करके by the time it's time for them to take the bride home, she has served the husband so much that and husband has been served by the wife so much, they are already in love। They probably won't call it love, because for us love means, that romance and all those sort of things। Love doesn't necessarily means all romantic and physical attraction। Love actually means, how can I serve this person, this is love। love means how can I serve instead of what can I get out of it। आजकल के relationship कैसे हो गए, what can I get out of this। पहले क्या होता था, what how can I serve। So when you do some sort of ritual on a daily basis, what will happen, slowly and gradually you will start getting that motivation अपने आप ही। क्योंकि क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होने लग जाएगा, है ना। जैसे जैसे मेरा बेटा है, वो उसको उसने बैडमिंटन, ऐसे ही घर में बैडमिंटन लेके आया, खेल रहा था वो, है ना। उसको 2-3 बार उससे लगा ही नहीं एंड ही लॉस्ट मोटिवेशन, तो उसने छोड़ दिया। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा आपको बैडमिंटन अच्छा नहीं लगता। कहता नहीं पापा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा यार अभी 30 सेकंड तो हुए नहीं तुम्हें खेलते हुए, तो पसंद कैसे नहीं, हाउ डू यू नो। कहते पापा मेरे से नहीं खेला जा रहा है। मैंने कहा खेला नहीं जा रहा है इसलिए पसंद नहीं है या ये तुम्हें पसंद ही नहीं है। तो कहता कि आई कांट प्ले इट दैट्स वाई। मैंने कहा ठीक है लेट्स ट्राई। फिर मैंने उसको आधा पौन घंटा 45 मिनट्स तक हम लोग करते रहे एंड देन ही लव्स इट नाउ। क्योंकि अब उसके रैकेट पे आ रही है शटल शटल तो मार रहा है एंड ही इज प्लेइंग। His enthusiasm was based on the activity that he kept doing regardless of whether he liked it or not। And for us as well, in order for us to get motivated, we got to keep doing things which will eventually give us motivation। Don't wait for motivation to do things, है ना। हमारे ऑफिस में भी कई बार नहीं होता ऐसा, मोटिवेशन है चाहे नहीं है, काम करना है तो करना है, बात खत्म। एंड इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, मोटिवेशन विल कम, है ना। रुचिता माता जी, डज इट मेक सेंस? Great learning, Prabhuji. I think that has motivated me now. ओह थैंक यू। मिथुल प्रभु, आप कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जी, आपने जैसे बताया ना कि डार्कनेस है ही नहीं, इज हाँ जस्ट एब्सेंट ऑफ लाइट।
और सिमिलरली हीट, कोल्ड है ही नहीं, इट्स एब्सेंट ऑफ हीट। यस ठीक है, तो कोई क्वेश्चन करे कि चलो आप उसका उल्टा भी समझ सकते हैं ना, कि चलो देर इज नो लाइट एब्सेंस ऑफ डार्कनेस, इट्स एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। यस, एब्सेंट ऑफ सॉरी उल्टा, नहीं, सही बोल रहे हो, देयर इज नो हाँ, लाइट बट एब्सेंस ऑफ डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट। और उल्टा भी, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। हाँ हाँ, तो फिर वही तो। इसको, हाँ, तो वही सेम ही है क्या, समझना कि अलग अलग से ये अलग क्या? है, मैं आपको, हाँ, इसका कॉन्टेक्स्ट, सॉरी आई शुड हैव गिवन यू कॉन्टेक्स्ट, मेरे को लगा सब लोगों ने सुना होगा ये। एक्चुअली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था कि somebody asked a professor, hey God, professor asked the kids, hey God exist? तो उसने बोला कि बच्चों ने बोला हाँ, कुछ बच्चों ने बोला हाँ, how many of believe that God exists? कुछ लोगों ने हाथ खड़े करे, उसमें से एक को खड़ा कर दिया, बोला hey tell me uh, who's created everything? तो उसने बोला God. So that means God has created good and God has created evil. बोले yes. So that means your God is capable of creating evil, so by the definition your God is evil. सो बच्चा कुछ बोल नहीं पाया, ही सैट डाउन। सो दूसरा खड़ा हुआ, बोला नहीं प्रोफेसर, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। ही गोज व्हाट? ही गोज डज डार्कनेस एग्जिस्ट? कहता हाँ एग्जिस्ट। ही गोज नो, डार्कनेस डज नॉट एग्जिस्ट, even in physical world darkness does not exist. That's why we don't have any measurement, any unit to measure darkness. We can only measure light. Absence of light is darkness. Similarly, absence of God consciousness is evil. Evil does not exist. Evil is actually absence of spirituality, absence of God consciousness जिसको कहते हैं। Wherever there is moral values, where moral values का जो basis होता है, it actually comes from spiritual enlightenment. Spiritual beings believe in God or believe in something higher than us. That's where people become more, they get this morality, है ना? Because God actually, if God exists, but God is not the cause of evil. God is cause of only goodness. Absence of God is cause of evil. That was the point we were making. So and that's when it makes sense. It's just a way to explain to people that absence of heat is called coldness. Coldness does not exist. इसी तरीके से evil does not exist. It's absence of God consciousness that brings evil. तो कोई बोलेगा there are so many God conscious people, they are evil. But problem is those people think they are God conscious, but they are not. है ना? They have a fake idea of God consciousness. Right? Somebody actually try and bomb someone on the base on the name of religion. That is stupidity. That means they are not God conscious. है ना? They're selfish in क्या बोलते हैं? They're selfish people. They don't understand what's going on. Simple सी बात है. Does it make sense, Mithul Prabhu? Yes, 100%. Okay. All right. Let's look at the second part of the purport and then we'll finish. I think. All right. Who wants to read from here? Who wants to read from here? I can read, Prabhuji. Yeah. All the soldiers and person on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual form like the Lord after their death, because by the causeless mercy of the Lord, they were able to see him face to face on that occasion. The conditioned soul rotating in the evolutionary cycle from the aquatics up to the form of Brahma are all in the form of Maya, or the form obtained by one's own actions and avoided by material nature. The material nature of the conditioned souls are also are all foreign dresses, and when the conditioned soul becomes liberated from the clutches of material energy, he attains his original form. The impersonalists want to attain the impersonal Brahman effulgence of the Lord, but that is not at all congenial, congenial to the living spark, parts and parcel of the Lord. Therefore, the impersonalists again fall down and get material forms, which are all false to the spirit soul. A spiritual form like the Lord's, either two-handed or four-handed, is attained by the devotees of the Lord, either in the Vaikunthas or in the Goloka planet, according to the original nature of the soul. This form, which is 7% spiritual, is the swarup of the living being, and all the living beings who participated on the battlefield of Kurukshetra on the both sides
attained their Swarupa as confirmed by Bhismadev. So Lord Sri Krishna was not merciful only to the Pandavas, he was also merciful to the other parties because all of them attained the same result. Bhismadev wanted the same facility also, and that was his prayer to the Lord. Although his position as an associate of the Lord is assured in all circumstances. The conclusion is that whoever dies looking onto the personality of Godhead within or without attain his Swarup, which is the highest perfection of life. Beautiful. What an amazing last ball पे छक्का मारने वाली बात है. Srila Prabhupada is saying, like, we have discussed this. Antkale chamameva smarana muktva kalevaram. Antkal. At the time of death, if we can remember the Lord, smarana muktva, we will be liberated. Kalevaram. Kalevar का मतलब होता है this body. Kalevar something नश्वर जिसको कहते हैं ना कलेवर. स्मरण मुक्तवा कलेवरम. है ना. तो और यही आती समद्भावम यात्री नास्त्री अत्र संशया. भगवान कह रहे हैं जिसमें इसमें कोई संशय नहीं है. जो अंतकाल में मेरा नाम लेता है वो मेरे पास आता है, उसमें कोई संशय नहीं है. ही इज सेइंग देयर इज नो डाउट. है ना. सो व्हेन कृष्णा इज सेइंग नो डाउट, what he is trying to say is that, hey, don't even doubt it. Don't let the doubt fool you. Now यहां पर शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि एवरी सिंगल पर्सन इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र was getting the mercy of the Lord. How amazing is that? Like, there is a story जहां पर Mukunda was one of the very great disciple of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. One day what happened is Gadadhar Pandit was actually Gadadhar Pandit is actually Radharani. है ना. Radharani came as Gadadhar Pandit. So Mukunda wanted to take Gadadhar Pandit to who was the guru of Gadadhar Pandit? Richa Mataji, do you remember? गदाधर पंडित राधा रानी जी. नहीं, गदाधर पंडित के गुरु महाराज. आई थिंक पीछे थे प्रभु, मैं भी भूल जाती हूँ. आपने बताया इतनी बार. हाँ, मैंने बताया था ना. जो उनको सुन के. हाँ, वही स्टोरी में बताने वाला हूँ. बट आई वांटेड टू से द नेम. पुंडरीका. पुंडरीक विद्यानिधि. प्रभु पीछे वही सोच रही हूँ. So what happened? सोच रही, सॉरी प्रभु. क्या हुआ? one day पुंडरीक विद्यानिधि was coming to do a lecture. है ना. तो मुकुंदा जो चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी हैं, उन्होंने बोला गदाधर पंडित को कि चलो चलो मैं तुम्हें ना उनको एक बहुत बड़े अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलवा के लाता हूँ. ही इज गोना डू श्रीमद् भागवतम की कथा. तो गदाधर पंडित बोले ठीक है. एंड देन ही वेंट देयर एंड पुंडरीक विद्यानिधि वाज सिटिंग ऑन अ मैसिव, उसमें बड़ा सा राजगद्दी थी, उसपे गोल्ड की नक्काशी करी हुई उसपे. एंड पुंडरीक विद्यानिधि वाज वेयरिंग ज्वेलरी, ऊपर उतना पगड़ी अच्छी सी, पगड़ी के ऊपर मोती, गले में मोतियों के हार, एंड मुंह में पान. एंड यहाँ पर वो जो होता है ना पान थूकने के लिए, वो भी साथ में रखा हुआ. लाइक he was like sitting like a king. And then Gadadhar Pandit was like, what is this? Is this guy is gonna give us Srimad Bhagavatam? Like Srimad Bhagavatam is supposed to be listened from the people who are renounced, है ना, जो जिन्होंने सबको छोड़ दिया है. And और मुकुंदा जो उनको लेके गए थे, he understood कि गदाधर पंडित के दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट आ गया है. So in order to remove that doubt, you know what he did? He actually stood up. He stood up and he started shouting एक मंत्र. श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है जो उसने, वो श्लोक क्या था? अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रासयापाय यदत्प्रसाद्भि लेभेर्गतिम धातृचिताम ततोन्यम किं वा दयालुम शरणं व्रजेम. जैसे ही उन्होंने ये बोला, पुंडरीक विद्यानिधि started tearing everything. He was in ecstasy because ये मंत्र क्या था? अहो बकी, जो पूतना, बकासुर की बहन बकी, पूतना जो जहर लगा के अपने स्तन पे कालकूट नाम का जहर लगा, स्तन कालकूटम, और जो उसको मारने के लिए आई थी, उसको भगवान ने मुक्ति देके अपने गोलोक वृंदावन में धात्री, है ना, नर्स का रोल दे दिया.
किम वा दयालुम शरणम व्रजेम, दिस इज हाउ मर्सीफुल ही इज, दिस इज हाउ मर्सीफुल इज। ये सुना जब पुंडरीक विद्यानिधि ने, स्टार्टेड टीयरिंग हिज क्लोथ, ही स्टार्टिंग रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अपने सारे ज्वेलरी इन्होंने तोड़ दी, एंड सम पीपल हैड टू ग्रैब हिम and get him out of that ecstasy. So when Gadadhar Pandit saw that, like, oh my goodness, he's not an ordinary guy. Like if he can, if this is what kind of ecstasy he has by listening to just one shlok, imagine what kind of deep bhakti this person has. तो ये सोच के then Gadadhar Pandit thought, no, 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 I was gonna do a Vaishnava aparadh by thinking bad about this Pundrik Vidyanidhi. So now I'm gonna go and ask him to be my guru. And who was this Pundrik Vidyanidhi? Pundrik Vidyanidhi was Vrishabhanu, who was Radharani's father. है ना, in Vrindavan Leela. So this, in this time, because Gadadhar Pandit, male, as a male, he got initiated by Pundrik Vidyanidhi. So the reason why, I don't know why I was telling you this story. Why was I telling this story? What was the link? I forgot. What were we discussing? हाँ, भगवान की मर्सी। हाउ इज भगवान की मर्सी? भगवान की मर्सी हर किसी के पास जा रही है, इक्वली जा रही है। हम कैसे समझें यार? दिस इज लाइक रिडिकुलस। यहाँ पर देखो ना, पूतना ट्राइंग टू किल, बट डज दैट मीन कि हम लोग भी वही वो रखें? नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट। क्योंकि एक्चुअली भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति होती है अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरी कोई अभिलाषिता, भगवान के अलावा कोई और अभिलाषा की जो चांसेस होते हैं शून्य, जब वो शून्य हो जाएंगे, और जब ज्ञान, जो हम लोग अब जो ज्ञान की बात करते हैं ना, ज्ञान ज्ञान का जो पर्दा होता है वो भी हट जाएगा। कैन यू इमेजिन? ज्ञान भी हमें कई बार पर्दा डाल देता है हमारे पास, हमारे आगे। आपने देखा होगा, अब कोई बोलेगा हाउ इज, ज्ञान कैसे पर्दा डाल सकता है ना? ज्ञान कैसे पर्दा डाल सकता है, मैं बताता हूँ। कई बार जब हम लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं, खूब सारे श्लोक हमें याद हो जाते हैं, तो राइट प्रभु जी। हाँ, प्राइड, एग्जैक्टली राइट। जब हम लोगों के, जैसे ही हम लोगों को खूब सारी चीजें पता होने लग जाती हैं, हम लोग दूसरों को अपने से छोटा समझने लग जाते हैं। अरे इसको इसको श्लोक नहीं याद है, अरे बाप रे, क्या होगा यार इसका? तो हुआ क्या, उस एक सेकंड में हमें ज्ञान के आवरण में आ गए हम लोग। दैट मीन्स वी आर कवर्ड बाय ज्ञान। अब वो जो ज्ञान क्या करेगा, वो ज्ञान हमारा इग्नोरेंस हटाने की जगह हमारी इग्नोरेंस बढ़ाएगा। क्योंकि जो प्राइड होगा ना, प्राइड विल एक्चुअली प्रिटेंड टू बी आवर बेस्ट फ्रेंड, है ना। और कई बार लोगों को लगता है कि और नहीं नहीं प्रभु जी, दिस इज नॉट माय प्राइड, दिस इज माय सेल्फ रेस्पेक्ट। एक्चुअली सेल्फ रेस्पेक्ट और प्राइड में जमीन आसमान का अंतर है ना। व्हेन यू आर प्राउड, when you're proud, then you look at yourself as bigger than others. When you have self respect, you look at yourself as equal to others. It's completely different. I'll repeat, when you are proud, you think you're better than others. When you have self respect, that means you think you're equal to others. Does it make sense? So एक आपको किसी 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 से ऊपर पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं यार, आई हैव अ सेल्फ रेस्पेक्ट, दैट मीन्स आई नो आई माय फीलिंग्स डू मैटर, माय फीलिंग्स आर नॉट बेटर देन अदर्स, माय फीलिंग्स डोंट हैव मोर वेटेज देन अदर पीपल्स फीलिंग, बट माय फीलिंग्स डू हैव इक्वल वेटेज। दैट इज सेल्फ रेस्पेक्ट। ईगो और हमारी प्राइड क्या बोलती है? नो 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 नो, एवरीवन एल्स, सबके इमोशन कचरा है, मेरे इमोशन सबसे अच्छे हैं। एंड दैट इज वाई ज्ञान कर्म अनावृतम। तो क्या करता है भक्ति? क्या करती है? हमारे ज्ञान का जो पर्दा होता है ना, उसको भी हटा देती है। दैट इज वाई जस्ट रीडिंग भागवतम इज नॉट गोना प्यूरिफाई यू। What will purify you is reading Bhagavatam from the right source. That means Srila Prabhupada ki Srimad Bhagavatam. And second, associating with the devotee, somebody who can explain these intricate details from in here. बिकॉज लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? वी ऑल हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। अगर मैं दूसरी की नकल करने लग जाऊंगा, बाजू वाले ने बड़ा टीवी लिया है तो मेरे को भी बड़ा टीवी लेना है, अगर मैं एक कंपैरिजन करने लग जाऊंगा, दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू कॉपी समवन एल्सेस, बट द प्रॉब्लम इज एवरीवन हैज डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, है ना। हम भूल जाते हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स एंड सडनली वी रियलाइज अरे मेरा क्वेश्चन पेपर ही डिफरेंट था। उसके क्वेश्चन पेपर में लिखा था दैट्स व्हाई ही वाज डूइंग लिविंग हिज लाइफ लाइक दैट, मेरे क्वेश्चन पेपर में कुछ और लिखा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। शिला प्रभुपाद यहाँ पर क्लियरली बताते हैं कि
the material form of conditioned souls are all foreign dresses. And when the conditioned soul becomes liberated from the clutches of material energy, he attains his original form. So when we know what is my question paper, what will happen is हमारा जो अज्ञान का पर्दा हटेगा, we will understand what is my true position. जीवेरे स्वरूप होए कृष्णे रे नित्य दास. We want to be master of everyone else. Office में जाओ, you want to be master of everyone else. You go to your home and you want to be master of your spouse. You want to be master of your kids. You want to be master of your friends. है ना? This mentality of being a master is the reason why we are miserable, because we are actually not masters, we are servants. So if we accept ourselves as servant of the servant, and especially not servant of everyone, servant of Krishna and everyone who is serving Krishna, then what will happen is Jivere Swarup Hoy Krishna Re Nitya Das. And when you are actually living life like that, that is called Samadhi. What is Samadhi? Samadhi is a frame of mind where you understand, who am I? I am the servant of the Lord. तो होता क्या है, when we get angry at our spouse, angry at our kids, what are we doing? We're trying to satisfy our ego. We are not concerned about God. Who is my wife? My wife is the gift from Lord. My kids are my gift from Lord. Even my friends are gift from Lord. If I don't treat them like that, then what am I doing? I'm actually not reciprocating from Krishna. And that is when we have a problem. वहीं से प्रॉब्लम सारी शुरू होती है. ओके, सो विल स्टॉप हियर. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ओके, प्रियंका माता जी, आपका क्वेश्चन है. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी. मेरे एक नहीं, दो दो तीन क्वेश्चन हैं, अच्छा, छोटे पूछिए छोटे हैं। पूछिए माता जी, आप, एक एक करके पूछिए. हाँ जी, आप जो पूरे क्लास के बीच में जो स्टोरीज बोलते हैं, और सिर्फ आप नहीं, जब हम और भी जगह इवन टेम्पल में भी सुनते हैं, तो वो जो भी क्लास दे रहा होता है वो बीच बीच में जो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज बोलते हैं ना, हम्म. समझाने के लिए, वो हम्म. आपको कहाँ से मिलती है? क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं बाद में अपनी बेटी को सुनाऊं, रात में सोने से पहले उसको रहता है कि कुछ वेरी गुड सुनाओ, आइडिया. लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मतलब लाइक उस टाइम पे याद नहीं आती। तो अच्छा. तो मतलब कोई ऐसी जगह है ऑनलाइन या कुछ या? एक्चुअली जगह तो कोई है नहीं माता जी. अभी हम लोग जो लेक्चर सुनते हैं उन्हीं में से हम लोग ये स्टोरी निकाल के हैं. व्हेन आई प्रिपेयर फॉर द क्लास, मैं स्टोरीज लिख लेता हूँ. ठीक है, मतलब उनके अच्छा। टॉपिक्स लिख लेता हूँ, फिर वहीं से स्टोरी हम लोग देते हैं. लेकिन अगर आप एक काम करो, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है? हाँ जी है। आप मेरे को प्लीज अपना ईमेल एड्रेस भेजो. मेरे पास एक कुछ स्टोरीज हैं जो एक वर्ड फॉर्मेट में है ना. वो अच्छा जी। स्टोरीज मैं आपको भेज सकता हूँ, है ना. कुछ स्टोरीज हैं लिखी हुई. ठीक है. जी जी, ठीक है। ठीक. दूसरा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना शुरू करूं, हाँ मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने, कि हाँ बैठ के कुछ नहीं, वन पेज पढ़ेंगे वैसे। हाँ हाँ फिर वो कभी वो बिजी हो जाते, कभी मैं बिजी हो हाँ. जाती हूँ, वो दो तीन बार हमने शुरू किया और वो बंद हो गया। हम्म. तो मैंने फाइनली मेरी कजिन्स जो इंडिया में हैं उन लोगों के साथ टाइम सेट किया, एंड अभी हम हफ्ते में एक दो बार जो है ऐसा जूम पे बैठ करके ही ब्यूटीफुल. रीड करते हैं। तो अब ये वो आ जाती है ना कि अरे नहीं, वो लोग वेट कर रहे होंगे, तो आई कांट बी लाइक कि अरे ब्यूटीफुल. आज मेरे को काम है या वो। हाँ, तो अच्छा, रियली गुड. और पढ़ते पढ़ते अगर आप लोगों की कहानियों में से कुछ याद आ जाता है एग्जाम्पल, तो वो हाँ, मैं शेयर कर पाती हूँ। बहुत ही बढ़िया. बट एक चैलेंज है ना, हाँ, बोलिए बोलिए. उनके क्लास में, मतलब लाइक जब हम ऐसा बैठकर पढ़ रहे थे, तो उनके सब होते हैं ना, और फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक सासू माँ हाँ है, हाँ कभी हस्बैंड रहते हैं, हाँ. और वो सुनते हैं। तो मुझे दो बारी लोगों ने बोला, एंड आई एम सो सरप्राइज कि उन लोगों के मुंह से ऐसे क्यों आया, क्योंकि वो गुजरात में ही रहते हैं, एंड हाँ दे डू ऑल दीज थिंग्स, लाइक उन्होंने अपनी जो उनका बिजनेस है वहां पे कृष्णा सब कुछ है, बट हाँ. स्टिल दे सेड, अरे ये क्या कर रहे हो, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली ये. एंड ही सेड, जब उन्होंने ऐसे बोला तो आई वाज लाइक कि एक तो वो ससुराल वाला टाइप हो जाता है हाँ, ना, तो आई वाज लाइक मुश्किल है. हाँ. अच्छा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो हाँ. उन्होंने बोला कि नहीं, कर्म ही सब कुछ होता है, और ये है वो है,
बाकी सब मे बी मुझे कहीं एक फील हो रहा था कि शायद उनको ये लग रहा है कि श्रीमद् भगवत जो अच्छे से पढ़ता और समझ जाता है तो उसके कहीं अंदर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ जाता है, तो उनको ये फेयर हाँ रहता है कि अरे बेटा तो फिर हाँ डिटैच हो जाएगा या हाँ कुछ ऐसा। तो आई कुड अंडरस्टैंड, बट जब मेरी कजिन के हस्बैंड बार बार एम्फसाइज कर रहे थे कि नहीं कर्म ही सब कुछ होता है, तो समहाउ मे बी आप लोगों से सुनते सुनते मेरे मुंह से ये निकला। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट मैंने कहा कि आई कंप्लीटली अग्री, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म ही होता है एंड वो हमें कॉन्शियसली करना चाहिए। बट वो कर्म योग भी इस 18 चैप्टर की बुक में सिर्फ एक या दो ही है, सो वी हम्म शुड नो दी अदर थिंग्स एज वेल। हम्म तो उन्होंने बोला कि आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। आई सेड हाँ आप मुझे बताइएगा, इवन आई हैव जस्ट स्टार्टेड, मैं तो एक बेबी हूँ अभी हम्म, इसमें। बट हाँ आई विल डेफिनेट, इफ आई डोंट हैव द आंसर आई विल डेफिनेटली एस्केलेट टू जिनके भी क्लास में मैं जाती हूँ। हाँ। आप किन की क्लास में जाते हो? आप म्यूट पे चले गए प्रियंका माता जी। सॉरी प्रभु जी। किसकी क्लास में जाते हो माता जी आप? मतलब जैसे ऑनलाइन में आपकी क्लास और मतलब आप सुन रही भक्ति थी रक्षा में तो। जाते हो, किसी भक्ति रक्षा में? हाँ जी, अभी मैंने रिसेंटली कुछ एक महीना हुआ है रॉक बैंक में है। अच्छा, रॉक अ, बैंक वाले में, अच्छा। हाँ जी। कौन है वहां पर, कौन दे रहे हैं क्लास? मैं उनका नाम भूल ओके, जाती दैट्स हूँ। ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। सो हाँ ठीक है, आप एक एक दो काम कर सकते हो। या तो आप उनसे ना अपने जो भी आपके जो वो हैं उनको ना मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर दे दो, ठीक है? जी उनको जी बोलो, सर। उनको कोई भी क्वेश्चन हो ना, दे कैन डू। एक वॉइस मैसेज होता है ना, वॉइस मैसेज छोड़ देंगे ना, वॉइस मैसेज में मैं उनको आंसर भी दे दूँ, ठीक है? जी। नो प्रॉब्लम। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि आपको मैं बताता हूं कि द रीजन वाई पीपल थिंक कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। नहीं, कर्म पूजा नहीं है, पूजा पूजा है, कर्म 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 है। कर्मा क्या होता है? कर्मा इज एक्टिविटी, लेकिन कर्म योग is an activity which is actually has a ultimate reasoning of going back home, back to Godhead. That's called karma yoga, ठीक है? हम्म हम्म श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने क्या क्या बताया? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब सारे सारे योग बताए, ठीक है? ज्ञान योग, ध्यान योग, सब कुछ है। लेकिन वो सारे के साथ योग लगा हुआ है। योग का एक्चुअल मीनिंग होता है युज। युज इट कम्स फ्रॉम ए धातु युज। युज मीन्स कनेक्शन। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद लॉर्ड। कर्म योग का क्या मतलब होता है? व्हेन यू आर डूइंग कर्मा बेस्ड ऑन योर कनेक्शन विद द लॉर्ड, देन इट बिकम्स पूजा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का मर्डर करा, दैट इज कर्म एज वेल। कर्म का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है वर्क और एक्टिविटी। किलिंग समवन इज एन एक्टिविटी, but that's not karma yoga. Karma yoga is when you do an activity based on the fact that how is it connected to the Lord. That's called karma yoga, है ना? Activity is activity, activity is karma. The reason why we are in this body right now is because of our past karmas, and what we are doing right now is it's we are building a new body for the next birth already, है ना? So that is kriya, that is called activity, that's called karma. लेकिन कर्म योग का क्या मतलब होता है? व्हेन वी यूटिलाइज दिस एक्टिविटी इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। दैट मीन्स इफ आई गो टू ऑफिस, but the reason why I want to go to office is so that I can earn money, so that I can actually devote myself or devote that money or the that money to buy prasadam to भगवान के भोग लगा के I will eat that prasadam, or I'm actually मैं अपने बच्चों को पैदा पाल पोस रहा हूँ ताकि I can make them a little, give them some devotional credits. That is the purpose of me going to work. Then it becomes karma yoga. That means it becomes bhakti. And it becomes bhakti. It's not even karma. It's actually above karma yoga. It will become bhakti. Because what I'm doing is I'm doing for the purpose of the Lord. है ना? लेकिन क्या होता है when you say कर्म ही सब कुछ है, that means यार कर्म तो, like for example somebody say, oh getting up brahma muhurat is a really good thing and whoever gets up early is spiritual. नहीं, I've got a boss, मेरी बॉस जो है वहाँ सीबीआई में जो मेरी बॉस है, she gets up at 4 o'clock, but at 4 o'clock what does she do? Does she do any spiritual activity? No, she doesn't do, because she has to, उसको travel करना पड़ता है 3 घंटा, है ना? इसलिए she gets up at 4 o'clock. She is not getting up so that she can do some devotional activity या जपा करना है. No, she gets up early because she has to travel for 3 hours. That is not karma yoga, that's just karma.
Karma yoga means when you get up early in the morning and we are actually, how, what can I do? What activity should I do to connect with the Lord? That is called karma yoga. So there are a lot of intricacies and stuff, and that's why when people are reading, it's a really good idea to do read Bhagavad Gita and stuff together, which is perfectly fine. But make sure that there is no questions that they ask should go unanswered, because most of the demotivation happens when the questions are not answered. I remained as a Nastic for a long period of time because none of my questions were answered by my mother. मेरी माँ मेरे को कुछ नहीं समझा पाई. She knew Hmm. everything, but she could not explain to me in my scientific language. So जब मुझे पता चला इसके बारे में, then I changed. I realized, okay, ठीक है, now I understand it. है ना? However, that's why it is being inquisitive is really good. And when some people, और दूसरी बात क्या है, when Bhagavad Gita was given to Arjuna in the battlefield, है ना, it was given to a grahastha. Arjun was a grahastha. He was actually in a battlefield. अर्जुन तो डिटैच होने वाला था, वो बोल रहा था मेरे को सबको छोड़ के जंगल में जाना है. कृष्णा ने बोला नो 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 नो, यू हैव टू फाइट, दिस इज योर धर्मा, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइट एंड रूल द किंगडम. है ना? अब जो लोग उल्टा बोलते हैं कि नहीं यार ये भगवत गीता पढ़ेगा तो सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट भगवत गीता इज. और दैट्स व्हाट हमारे जो पुराने ब्राह्म पंडित वगैरह हैं, उन्होंने यही चीजें बता रखी है लोगों को. अरे यार ये सब माया है, सब छोड़ छाड़ के जंगल जाना है, ये वो. सो उसके कारण लोगों को डर लगता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड. भगवत गीता वाज, कोई आपको बोले तो यू कैन टेल देम भगवत गीता वाज गिवन टू अर्जुना हु वाज एक्चुअली गोइंग टू द फॉरेस्ट, एंड कृष्णा सेड नो, दिस इज योर धर्मा. तो गे गृहस्थ को गृहस्थ रखने के लिए बोला उन्होंने. एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट भगवत गीता. But yes, if they have any questions, they can ask. They can actually send me a voice message and reply back. But very good. I'm very happy that you're doing it, because not many people are doing it, and it's actually really really good. It will definitely help, immensely help your devotional practice, definitely. Thank you. Or I just want to share one thing. I want to actually say thanks. COVID के time पर I started doing food service. और Okay. वो समय पे मैं मतलब लाइक जो भी बनाते थे सर्विस करते थे, और क्लास में डिस्कशन हुआ था तो आपने बोला, मतलब वो टाइम पे शायद ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा था कि अगर हम मतलब गुड कर्मा बैड कर्मा जो भी हाँ रहता है वो मतलब लाइक वी गेट इन टू दैट लूप, यू नो. हाँ हाँ, बिल्कुल सही. वो तो आई गॉट लिटिल स्केर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मतलब अगर मैं फूड सर्विस कर रही हूँ तो हाँ नेक्स्ट जन्म में क्या मतलब मैं वो सिचुएशन में होंगी दैट दीज पीपल विल कम एंड हेल्प मी. तो आई हाँ, गॉट लिटिल स्केर्ड एंड यू आंसर्ड मी कि वो पहले कृष्णा को ऑफर भोग करे एंड लगाते देन. हैं. हाँ हाँ. जी. Then सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. तो awesome. मुझे अच्छा लगता है, लाइक पहले ये आता था ये थॉट कि अच्छा मैंने कर दिया, हाँ ये हाँ मैंने किया. हाँ. बट अभी आता है कि कृष्णा को मुझसे करवाना था इसीलिए Beautiful. मैं कर पाई. Beautiful. एंड इट्स सच ए नाइस फीलिंग. कभी ऐसा डाउट आता है मन में तो आई स्टार्ट स्पीकिंग टू कृष्णा एज इफ कि वो ऐसा बगल में चल रहे हैं. Exactly एंड right. ही हेल्प्स मी अ लॉट. वैसे बोलते हैं कि अभी अगर आप कभी भी कुछ सर्विस करते हो तो बोलना नहीं चाहिए. मम्मी बोलती है एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए. Hmm. बट Hmm. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विच हैपेंड विद मी. मैं जब ऐसे जाती हूँ ऑफिस, तो मेरे को रास्ते में दो चार लोग मिलते हैं जो जमीन पे सो रहे होते हैं ठंड हाँ में ना वैसे. हाँ तो एक दिन लाइक अभी कुछ ही वीक पहले की बात है, तो वो एक आदमी बिल्कुल बहुत पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा था वहां पे, और वो लिटरली हिलती हुई दिख रही थी मुझे उसकी बॉडी. तो कांप मेरे रहा को था वो. उसी. हाँ जी. तो मुझे ऐसे मन आया कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग. मैं कल घर पे इतने सारे ब्लैंकेट पड़े हैं, मैं एक ला करके इसको दूंगी, हम्म और जो है मैं इसको ऐसा मतलब उड़ा के या यहीं पे रख के चली जाऊंगी. तो फिर मेरे को दिमाग में आ रहा है कि कल से मतलब आज तो गया, आज रात भी ऐसे ही सोएगा, कल मैं ऑफिस आऊंगी नहीं, परसों हम्म दे पाऊंगी. सो आई हम्म वॉज लाइक सो रेस्टलेस. तो लंच ब्रेक में मैं गई, और हैरिस काफ से एक एंड टचवुड, क्योंकि मेरे को ये भी लग रहा था कि बहुत महंगा आएगा हाँ क्योंकि
हाँ अच्छा पतला वाला नहीं देना है, पतला तो वो ओढ़ा ही हुआ है, हाँ, थोड़ा अच्छा थोड़ा होना अच्छा से चाहिए। देना चाहिए, हाँ। हाँ, तो मैं जाते समय बोल रही हूँ अगर सेल पे हुआ ना तो मैं हाँ ले लूंगी, वरना हाँ फिर मैं घर से ला करके दूंगी। हाँ। तो आई गॉट दैट ब्लैंकेट ऑन सेल, वाओ। लिटरली जस्ट $15। वाओ। सो आई टुक दैट, और जो है मैं लेके आ रही हूँ, और फिर मेरे को लग रहा है कि अगेन दैट क्लास दिमाग में, आई डोंट हाँ नो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मेरे को तो पता नहीं है। देखो हाँ, कृष्णा, अगर दिलवाना है तो वो अभी भी वहां बैठा होगा, नहीं दिलवाना है तो ठीक है, मैं चला जाके गया। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट डे जाके वापस कराऊंगी, मेरे पास स्लिप है। मैं दिमाग में ये सब बातें हाँ। कर रही हूँ। यू वोंट बिलीव दैट पर्सन वॉज नॉट देयर, हम्म। वो जगह पे वो नहीं था। अब हाँ मैं सोचती हूँ कि अब इतना बड़ा बैग मेरे को घर ले जाना हाँ, घर ले पड़ेगा, जाना फिर मेरे को पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। अगर कोई और तुमने सोच के रखा है कि हाँ उसको देना चाहिए तो अभी का अभी करवा दो, वरना मतलब आई डोंट हैव टाइम, अब हाँ ऑफिस से दोबारा हाँ। नहीं निकल पाऊंगी, ये सब चीजें हैं। एंड यू वोंट बिलीव, रोड क्रॉस करके 10 कदम नहीं चली मैं, एक वो एक जो एक अ, वो पहिए वाली जो रहती है ना सीट, हाँ 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 उसको क्या हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ वो खड़ी थी, और उसके बगल में एक बंदा बिल्कुल ना कॉर्नर में घुसा हुआ था, और वो सिर्फ टॉवल ओढ़ा हुआ था, और वो भी वाओ। लिटरली कांप रहा था। हाँ, तो मैं एक्चुअली उस तक पहुंची, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कहा वाओ। क्या यही करना है मेरे को। आई हाँ कुडंट ना हाँ डिसाइड, ऐसे हाँ पता नहीं अंदर से लगने हाँ लगा। मैं चुपचाप उसके पास वो ब्लैंकेट रखा, और मैं लिटरली वहां से भाग गई, क्योंकि हाँ आई वॉज नॉट एबल टू, कि मतलब हाँ हाँ मैंने हाँ, सोचा किसके लिए था, एंड वो शायद हाँ, इसको देना था, इसलिए वो बंदा वहां पे नहीं था, नहीं था, या जो हाँ। भी है। बट एंड उसके बाद मेरे को एक बार भी ये थॉट नहीं आया कि मैं ये काम करके गई हूँ। मतलब वैसे अदरवाइज आ जाता है ना कि अरे मैंने हाँ ये हाँ हाँ किया, हाँ। वो वो बिल्कुल फिनिश हो गया, मतलब ऐसे जैसे वॉक करने गई थी, वॉक करके मैं आ गई। बट हम्म हाँ, आई जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और अभी हम्म मेरे गाल वाल सब लाल हो गए हैं, वैसे ही हम्म मैंने आके अपने हस्बैंड को बताया कि दिस इज व्हाट हैपेंड नो। अभी मेरे को फील होता है कि अगर मुझे हेल्प चाहिए तो कृष्णा हेल्प करते हैं। डेफिनेटली 100%। 100%, एंड दिस इज रियली गुड। पता है, दिस इज द पर्पज ऑफ भक्ति। भक्ति का पर्पज ये नहीं है कि वी जस्ट बिकम सेल्फिश एंड वी गो बैक होम, बैक टू गॉड एंड ऑन आवर ओन, यू नो। भक्ति का पहला लक्षण क्या है? यू बिकम कंपैशनेट, पर दुख दुखी। भक्त का जो पहला लक्षण होता है, पर दुख दुखी। दूसरों का दुख देख के उसको दुख होता है ना? और कितना दुख होता है? उतना दुख होता है कि ही कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो व्हाट यू डिड इज फैंटास्टिक, एंड दैट इज द लक्षण ऑफ समवन हु इज ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो लोग बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, दे कांट डू इट, दे कैन डू इट, they can, and there are a lot of people who do it, but if you do it with discussion with Lord, what you're doing is you're giving them a lot of sukriti from God. क्योंकि वो जो कंबल आपने दिया है, it's actually a blessing for that person, not physically, but it will give them a blessing of spiritual blessing, because you are actually discussing with Krishna, and you are actually saying, Krishna, I'm giving it to him because you have guided me. Now what happens is that that blanket will have a devotional, that the blanket will have a devotional credit, you know. But very nice, very nice. I'm very, very happy. Very nice. Thank you, Mataji, for sharing. I really appreciate it. थैंक यू, थैंक यू। Okay. Thank you very much. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Prabhu. Thank you for your association. हरे कृष्ण। It's always blissful, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.